Hello students, hope all of you are well. So today I will discuss about our next topic, that is the detection of planarity of some graphs and some related problems. So in my previous lecture I have told you about how to check how to define a planar graph and what are the theorems related to planar graphs. That is, the most important theorem is Euler's theorem, generalized Euler's theorem, and some consequences. So let's start with our topic. Before we go to the planarity, let us solve some problems to understand. So first problem says that prove that Kartowski's first graph is not a planar graph. So how we will prove it? We know the definition of the Kartowski's first graph, that it is a complete graph with 5 vertices. So here we will apply first method to solving such type of problem. This method is also known as the conventional method. The conventional method is nothing but that we have to redraw the graph in like a sense that follow the definition of a planar graph. So what is the definition of a planar graph? That it can be drawn in a plane where the edges can meet either at the end vertices or they do not meet at all. That means there will be no crossover on the edges. So here we can see in this graph there are some crossover on the edges. So just we have to redraw the graph like this. But while we are redrawing the graph, you cannot draw the edge CE without crossing over any other edges. हम लोग CE को ज्वाइन नहीं कर सकते कोई भी एज को क्रॉस करके. तो ये ग्राफ क्या हो गया? नॉन प्लेनर हो गया. अगर हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते अलग से तो ये ग्राफ नॉन प्लेनर नहीं होता, प्लेनर होता. ठीक है. तो दिस शोज दैट द ग्राफ इज नॉन प्लेनर. Also we can check the graph is non-planar by applying a suitable applications of the previous theorem. So in our last video lecture I have told you that in a planar graph if there are n number of vertices and e number of edges then e must be less equal to 3n minus 6. So let us apply this theorem. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये ग्राफ पे 5 वर्टेक्स है तो n इक्वल टू 5 है, e इक्वल टू 10 है, 10 एजेस है, तो 3n minus 6 क्या होता है? दैट इज इक्वल टू 9. But we can see that there are 10 edges. So obviously 10 is not less equals to 9. So it is not satisfying the relation E less equal to 3n minus 6. अगर ग्राफ प्लेनर है तो ये रिलेशन को हर वक्त सेटिस्फाई करना है, ये नेसेसरी कंडीशन है. तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये ग्राफ क्या नहीं होगा? प्लेनर नहीं होगा. अभी मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो मेथड 2 मैंने यहाँ पे किया हुआ है E less equal to 3n minus 6, it is only the necessary condition but not the sufficient condition. इसका मतलब ये है कि कोई भी ग्राफ पे अगर E less equal to 3n minus 6 होता है तो वो ग्राफ प्लेनर भी हो सकता है, नॉन प्लेनर भी हो सकता है. ठीक है ना. अगर E less equal to 3n minus 6 है तो उसको देख के ही हम लोग ये नहीं डिक्लेयर कर सकते कि वो ग्राफ नॉन प्लेनर है या फिर प्लेनर है. ठीक है. तो ये हम लोग समझ लेते हैं दूसरा प्रॉब्लम से. So let us start with the second problem. Prove that Kartowski's second graph is non-planar. So obviously Kartowski's second graph is a complete bipartite graph, that is K33, जहाँ पे 6 vertex है और 9 edges है. तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो 3n minus 6 becomes 12 and obviously E less equal to 3n minus 6. So it is satisfying the inequality. Though this graph is non-planar. Why? Go to the conventional way. Let us try to redraw the graph. So I have draw the graph like this manner. Just AD जो यहाँ पे ज्वाइन है इसको बाहर से हम लोग यहाँ पे ऐड किए हैं, जैसे वो क्रॉसओवर नहीं हो रहा है. आफ्टर रीड्रॉइंग द ग्राफ स्टिल वी कैन नॉट ड्रॉ द एज ज्वाइनिंग E एंड B. अगर E और B को ज्वाइन करेंगे तो वो फिर से क्रॉसओवर ही आएगा. तो E और B को हम लोग अलग से ज्वाइन नहीं कर सकते विदाउट क्रॉसओवर एनी अदर एजेस. सो ऑब्वियसली दिस ग्राफ इज नॉन प्लेनर. Next problem is very important and it has repeated so many times in the previous semesters. Problem is that we have a regular graph. Regular graph क्या होता है? जहाँ पे हर एक vertex का डिग्री सेम है. G determines 8 region. एक रेगुलर ग्राफ G है जहाँ पे 8 region को डिटरमाइन कर रहा है. Degree of each vertex is 3. It is given. Find the number of vertices. So let us consider n be the number of vertices, E be the number of edges and F be the number of region. Now we know from the previous semester graph theory theorem, that is the handshaking lemma, that is sum of degrees of all vertices in a graph is nothing but 2 into the number of edges. Very important theorem that we have learned in the third semester.
So obviously sum of degrees of all vertices, since we have n number of vertices and each vertex is of degree 3, so sum of degrees of all vertices is equals to 3n. 2 into number of edges, that is equals to 2e. So e equal to 3n by 2. But here it is given that the G determines 8 region. So by Euler's formula we can write down f equal to e minus n plus 2. जहाँ पे f इक्वल टू 8 है, e इक्वल टू 3n by 2 है, माइनस n plus 2 है, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या आ रहा है? 12 आ रहा है. That means the graph has 12 vertices. That is our answer. Very important for exam. Okay. Let us go to the another problem. It is given that G be a simple graph with less than 12 vertices. It is given that G पे 12 से कम vertex है, ठीक है. Now we have to prove that G has at least one vertex whose degree is less than equals to 4. Say we are considering G has n number of vertices and e number of edges, and v1, v2, vn are the number of vertices. Okay, we have to show that degree of vertex must be less equal to 4. So we are try to apply the method of contradiction here. We are assuming that if possible degree of some vertex is greater equal to 5. Clear? तो अगर सभी vertex का डिग्री greater equal to 5 होगा तो वो हैंडशेकिंग लेमा अगर हम लोग यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? That is summation of all degree will be greater equal to 2 into number of edges. तो वही से हम लोगों को क्या मिलेगा? समेशन ऑफ डिग्री भी आई गेटर इक्वल टू 5n, क्योंकि हर एक वर्टेक्स का डिग्री अगर 5 है और n वर्टेक्स है तो 5 n वर्टेक्स के लिए डिग्री क्या हो जाएगा? 5n हो जाएगा. लेकिन डिग्री 5 से ज्यादा है तो समेशन ऑफ डिग्री क्या होगा? 5n से ज्यादा होगा. अभी हैंडशेकिंग लेमा जो मैंने अभी कहा है, समेशन ऑफ डिग्री इक्वल्स टू 2 into number of edges. So 2e will be greater equal to 5n. Now the graph is simple as well as planar graph. So if it is a planar graph, by necessary condition e should be less equal to 3n minus 6. तो यहाँ पे 2e क्या होगा? लेस इक्वल टू 6n minus 12. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 2e greater equal to 5n और 2e less equal to 6n minus 12. So obviously combining 1 and 2 we can see that 5n less equals to 2e less equal to 6n minus 12. So from the first and last term we can see 5n less equal to 6n minus 12, which imply n greater equal to 12. लेकिन it is given that in this graph it has less than 12 vertices, लेकिन हम लोगों को क्या मिल रहा है? greater than equal to 12 vertices. So ये ग्राफ क्या नहीं होगा? रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. So contradiction आ गया. तो contradiction क्यों आया था? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे पकड़ा है डिग्री ऑफ vi greater equal to 5. So it will not happen. Clear? नेक्स्ट जो जिसके लिए ये टॉपिक है वो है डिटेक्शन ऑफ प्लेनरिटी. बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से रेगुलर बेसिस में क्वेश्चन आता है सेमेस्टर पे. ठीक है, तो suppose we have any graph in our hand and we have to simply check whether the graph is planar or not. So simply we will go to some following steps and we have to give some result. Depending on the result and the steps we will detect whether a graph is planar or not. Very easy. The step 1 says that if the graph has several components, then consider one component at a time. Suppose the graph is a disconnected graph, then it will have some several connected component. So if it has several components, then consider any one of the component at a time. That is the step 1. In step 2 it says that if the graph is separable, then it would have several blocks. Then consider one block at a time. तो separable है इसका मतलब क्या है? कट वर्टेक्स प्रेजेंट रहेगा. कनेक्टिविटी का जो वीडियो लेक्चर था वहां पे मैंने तुम लोगों को समझाया है कट वर्टेक्स क्या होता है. अगर भूल गए हो तो उसको पहले देख लो. ठीक है, तो कट वर्टेक्स अगर है तो वो ग्राफ क्या हो जाएगा? सेपरेबल हो जाएगा. So if the graph is separable, then there will be some blocks. Then if we have to consider just one block at a time. Step 3 says that if there is any self loop or parallel edges present in the graph, then remove the parallel edges, keeping the main edge and the self loop. Because removing the parallel edges or the self loop cannot affect the planarity. ठीक है, तो self loop और parallel edge रहेगा तो उसको हम लोग हटा देंगे ग्राफ से, क्योंकि उसको हटाने से या फिर उसको ऐड करने से प्लेनरिटी का कुछ चेंज नहीं आता है. अभी जो स्टेप 4 है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है. स्टेप 4 सेज दैट इफ द ग्राफ हैज एनी वर्टेक्स ऑफ डिग्री 2, जहां पे दोनों वर्टेक्स एज है जो एक कॉमन जगह पे आके मीट कर रहा है, अगर ये होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? वो डिग्री 2 का वर्टेक्स को मार्च कर देंगे. कैसे मार्च करेंगे वो मैं प्रॉब्लम पे तुम लोगों को बताता हूं. जब हम लोग डिग्री 2 का वर्टेक्स को मार्च करते हैं तो वो वर्टेक्स कोई भी एक एडजेसेंट वर्टेक्स के साथ मार्च हो जाता है और बीच में जो एज रहता है वो कनेक्ट हो जाता है दोनों के बीच में. तो मार्च ऑफ द वर्टिसेस आई विल डिस्क्राइब इट बाय शोइंग सम एग्जांपल. ओके, आफ्टर मार्जिंग द वर्टिसेस इट विल आल्सो
does not affect the planarity. Okay, and step 5 says that repeat all the steps, step 1 up to step 4, until we get our desired result. So what are the result? After completion of all steps, we will see that the graph will be look like in this three manner. Either it will convert to a single edge, एक single edge हो जाएगा, या फिर एक कंप्लीट ग्राफ विथ 4 वर्टिसेस दैट इज K4, जो हर वक्त क्या होता है, प्लेनर होता है. और इट विल बी ए ग्राफ विथ n नंबर ऑफ वर्टिसेस, e नंबर ऑफ एजेस, जहां पे n होगा ग्रेटर इक्वल टू 5, e होगा ग्रेटर इक्वल टू 7. ये तीनों ऑप्शन के बाहर और कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा. आइदर आफ्टर अप्लाइंग ऑल दिस 5 स्टेप्स, आइदर द ग्राफ विल कन्वर्ट टू ए सिंगल एज, और इट विल बी ए कंप्लीट ग्राफ विथ 4 वर्टिसेस, और इट विल बी ए ग्राफ हैविंग greater equal to 5 vertices and greater equal to 7 edges. अगर 1 या फिर 2 आ जाता है तो वो ग्राफ तो प्लेनर ऑटोमेटिकली हो गया. ठीक है, अगर 3 आ रहा है तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 अप टू स्टेप 4 रिपीट करेंगे उसके ऊपर फिर से until we get 1 और 2. ठीक है, अगर उससे भी हम लोग नहीं ला सकते 1 और 2 को, तब हम लोग डिक्लेयर करेंगे कि ये ग्राफ क्या होगा, नॉन प्लेनर होगा. क्लियर? सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट बाय सम प्रॉब्लम. सपोज ये ग्राफ हमारे पास है, तो हम लोग को चेक करना है ये ग्राफ प्लेनर है कि नहीं है. तो हम लोग देख सकते हैं कि ये ग्राफ एक सिंगल कनेक्टेड ग्राफ है, सो इट हैज ए सिंगल कंपोनेंट दैट इज द ग्राफ इटसेल्फ. सो वी कैन स्किप द स्टेप 1 दैट इज टेकिंग वन कंपोनेंट एट ए टाइम. यही एक ही कंपोनेंट है तो इसको लेके काम करेंगे, तो वी आर स्किपिंग दिस स्टेप. ऑल्सो वी कैन सी दैट दिस ग्राफ हैज नो कट वर्टेक्स. कोई भी कट वर्टेक्स नहीं है, तो ये ग्राफ सेपरेबल नहीं है, तो इसमें ब्लॉक भी नहीं है. तो ये ग्राफ अगर ब्लॉक कंटेन नहीं कर रहा है तो ये पूरा ग्राफ ही नॉन सेपरेबल है, तो ये एक सिंगल ब्लॉक हो गया हमारा. ठीक है, मैक्सिमल कनेक्टेड सब ग्राफ व्हिच हैज नो कट वर्टेक्स, ये सिंगल ब्लॉक है, तो इसको ही लेंगे. फिर से यहाँ पे सेल्फ लूप है, पैरेलल एजेस है, तो इसको क्या करेंगे, हम लोग रिमूव कर देंगे. तो रिमूव करने के बाद ग्राफ कुछ इस तरह दिखता है. आफ्टर रिमूविंग द सेल्फ लूप एंड पैरेलल द ग्राफ इज लुकिंग लाइक दिस. बट यू कैन सी दैट after the step the graph is not become a single edge or it is not a complete graph with 5 vertices. यहाँ पे सिंगल एज भी नहीं है और ये कंप्लीट ग्राफ विथ 5 वर्टिसेस भी नहीं है, लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि इस ग्राफ पे कितना वर्टेक्स है, 5 वर्टेक्स है, एंड कितना एज है, 7 एज है. तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही स्टेप अप्लाई करेंगे. तो अप्लाई करने के लिए हम लोग देखते हैं ये ग्राफ पे डिग्री 2 का कोई वर्टेक्स है कि नहीं है. सो वी कैन सी दैट V5 एंड V2 आर द 2 वर्टिसेस ऑफ डिग्री 2. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको मार्च करेंगे. तो मार्च कैसे करते हैं, देखो V5 पे एक वर्टेक्स है जिसका डिग्री है 2, तो V5 को मार्च कर दो V3 के साथ या फिर V4 के साथ. तो V4 और V5 के बीच में जो एज है और V5 V3 के बीच में जो एज है वो सिंपली मार्च हो जाएगा V3 V4 के साथ, क्योंकि V5 और V4 अगर मार्च कर देते हैं तो ये डायरेक्ट वर्टेक्स यहाँ पे आ जाता है. तो ये एज इस एज से क्या हो जाता है, मार्ज हो जाता है. ठीक है ना, ये होता है मार्जिंग प्रोसेस ऑफ द वर्टिसेस. इसको फिर से हम लोग को रिपीट करना है जब हम लोग डिकम्पोजिशन ऑफ क्रोमेटिक पॉलिनोमियल करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे V5 को आइदर V4 पे मार्च कर दो या फिर V3 पे मार्च कर दो. तो मार्च करने के बाद ग्राफ कुछ इस तरह दिखता है. यहाँ पे भी हम लोग दिख सकते हैं कि V2 एक वर्टेक्स है जिसका डिग्री 2 है, V4 भी एक वर्टेक्स है जिसका डिग्री 2 है. तो V2 को मार्च कर दो V3 के साथ या फिर V2 को मार्च कर दो V1 के साथ, तो वो क्या हो जाता है, ट्रायंगल टाइप हो जाता है. फिर से V4 क्या हो गया, डिग्री 2 है, हर एक वर्टेक्स की डिग्री 2 है. यहाँ पे कोई भी एक वर्टेक्स को लो और दूसरे वर्टेक्स के साथ मार्च कर दो. से V4 को मैंने मार्च किया है V1 पे, तो V4 अगर V1 पे मार्च हो जाएगा तो V3 V1 के बीच में एक ही एज रह जाएगा. सो इट विल बिकम ए सिंगल एज. सो आफ्टर मार्जिंग ऑल दिस प्रोसेस वी कैन सी दैट द ग्राफ इज लुक लाइक ए सिंगल एज. देयरफॉर इट इज ऑब्वियसली ए प्लेनर ग्राफ. सो द मेन ग्राफ इज प्लेनर. ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे किया हुआ है. तुम लोग देख सकते हो कि ये जो ग्राफ है यहाँ पे V10 है हमारा कट वर्टेक्स, तो इसको अगर हटा देंगे तो डिस्कनेक्टेड हो जाएगा ग्राफ. सो ऑब्वियसली इंक्लूडिंग द कट वर्टेक्स वी हैव 2 blocks. The graph is separable, it has 2 blocks. These are 2 blocks. Okay, now in block B2 you can see that it is already a complete graph with 4 vertices. ठीक है, तो if it is already complete graph with 4 vertices then it is must be planar. तो planar already हो चुका है. ठीक है, कोई भी एज किसी को भी क्रॉस नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली प्लेनर है. लेकिन ये तो ग्राफ कंप्लीट ग्राफ विथ 4 वर्टेक्स भी नहीं है और सिंगल एज भी नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, मार्च करना पड़ेगा. कैसे मार्च करेंगे, V1 V2 और V3 तीनों वर्टेक्स का डिग्री कितना है, 3 है, तो तीनों को मार्च करेंगे. ठीक है ना,
तो V1 को अगर V6 से मार्च करेंगे तो V6 और V5 के बीच में जो एज नहीं था वो एज ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि V1 को जब हम लोग V6 से मार्च कर देते हैं, whenever you merge V1 and V6, the age joining V1 and V5 will automatically come down, and it will be a connection between V5 and V6. Similarly, whenever you join V2 with V4 or V2 with V6, then V6 V2 will be joined by V6 V4, and similarly V4 V5 will be joined. So whenever you are merging these three vertices, the graph will be look like this. Obviously it will reduces to another 4 vertex complete graph with 4 vertices. So obviously it is a planar graph. So ultimately the graph becomes planar. ठीक है, जहां पे दोनों ब्लॉक ही प्लेनर है तो इसका मतलब क्या हो गया, ग्राफ मेन ग्राफ प्लेनर हो गया। ठीक है, अभी एक नोट मैं यहाँ पे तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, जो मैंने पहले भी तुम लोगों को कहा है कि अगर आफ्टर डिटेक्शन ऑफ प्लेनरिटी हम लोगों को पता चलता है कि ग्राफ में सभी डिटेक्ट करने के बाद, मार्च करने के बाद या फिर पूरा प्रोसेस करने के बाद अगर वो ग्राफ कार्टोस्की फर्स्ट ग्राफ या फिर कार्टोस्की सेकंड ग्राफ देता है तो वो ग्राफ ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर हो जाएगा, क्योंकि कार्टोस्की फर्स्ट ग्राफ और कार्टोस्की सेकंड ग्राफ दोनों ही क्या है, नॉन प्लेनर ग्राफ है। अगर दोनों नॉन प्लेनर ग्राफ है तो वो दोनों अगर रिपीट हो जाता है कोई भी डिटेक्शन ऑफ प्लेनरिटी के दौरान, तो वो दोनों देयरफॉर देन द ग्राफ बिकम्स ए नॉन प्लेनर ग्राफ। ओके।